Good morning, everyone. What we are going to focus in this particular class is international law. Now, why I am starting with international law is the first question. There's a very specific reason. The reason is that international law's understanding requires a different approach in comparison to any other law prescribed in the UPSC law optional syllabus. What happens normally is that when candidates start with, for example, constitution, because it finds finds the subject very familiar, then you develop an inertia, because constitution's understanding requires a different approach than international law's understanding. So international law in the entire syllabus requires a different approach. That's why I felt that I should start with international law and not with any other law, so that आपका दिमाग would be like a clean slate और आप उस अप्रोच से पढ़ सकें. और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला जो एक अलग अप्रोच जो डेवलप हो जाता है, द इनर्शिया विच यू डेवलप, वो दैट डज नॉट इम्पैक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पेपर. नाउ both law and non legal background people can understand it. लेकिन सबसे पहले what you need to do is to unlearn what you have learned. क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है. आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी कैंडिडेट वुड बी एट द सेम लेवल. What happens is that especially in case of international law, we don't have much quality resources, and the resources which are very qualitative, mostly by the foreign authors like Malcolm Shaw or Brownlee, they are not usually referred in the universities. People go with the Allahabad Law Agency and all other texts. I'm not saying those are bad, but what I'm saying is those are not very refined texts. So international law जब भी पढ़ें तो आप क्वालिटी जो है वो इंश्योर करके पढ़ें. And when I'm talking about quality, I'm talking about the fact that या तो आप मैल्कम शॉ खुद से पढ़ें. That's a very beautifully written book. I'm specifically referring to Malcolm Shaw because it has very crisply written things. You need not refer to any other source if you are following Malcolm Shaw. Anyway, but still Malcolm Shaw is a thick book. So इसीलिए I am there कि I will try to make your task easier. Yes, coming to international law. तो कुछ basic चीज समझिए. Whenever we talk about international law, we are basically talking about public international law. So this is the first point one should remember. We are talking about public international law. So never get confused when we say international law. Then does it mean both private and public? I'll be later on discussing the difference between the concept of public international law and private international law. But अभी ये समझिए कि international law मतलब public international law. अब what is there in the syllabus of UPSC? तो देखिए UPSC syllabus in case of international law is very very exhaustive. It starts with nature, definition, scope of international law, फिर relationship between international law and municipal law, then sources of international law. अब देखिए ये नाम बस है sources of international law. Whenever the term sources of international law is mentioned, it's a very huge chapter in itself, because then we will go to treaties, which is altogether a separate chapter. We'll go to custom, we can go to general principles, we can go to Security Council resolution, we can go to I mean, although it is mentioned just as a single point, it is a big chapter because it consists of 4 or 5 subunits which are chapter in themselves. Then we have state recognition, then state succession, then we have law of the sea. Now law of the sea is a big paper in itself. In law schools, many a times law of the sea is offered as a paper. So for example, I have a master's in international law. We were taught, we were offered this as a separate paper. Now this is just given as a subunit of the syllabus. So
this, then we have international humanitarian law, international criminal law. Then we also have WTO, that is entire international trade law. And we also have other important aspects which are like UN and its agencies. So UN and its agencies is again very wide, because then we will have to read about the function, purpose, important case laws. Then ICJ in itself is a big unit. So what we are going to do in this particular course, that we would be focusing pinpointedly at a particular thing. We should not waste time in mere dictation of facts. We will not be wasting our time in beating around the bush. But that does not mean that we will not be focusing on concepts. Yes, we will be focusing on concepts, and then we will be focusing on what is to be done for the purpose of this examination, because ultimately the purpose is to clear the examination with an understanding. Now, I am focusing on the term understanding because if we go and have a look at the previous year's questions, the level of questions in the last 3 years, especially in international law, requires an in-depth understanding, a nuanced understanding. So clarity is required. It cannot be that a superficial knowledge will help you. I'll give you an example. This time a straight away question of international trade law was asked. Now what used to happen was that हम international trade law में सिर्फ ये पढ़ लेते थे that yes, there is something called MFN, there is something called national treatment, there is something called WTO, and there is something called GATT. So that superficial understanding will not help in solving of the questions when it comes to civil services, law optional, especially international law. You just focus international humanitarian law से सीधा question था. But we normally ignore international humanitarian law, international armed conflict, non-international armed conflict. So these, I'm just using these terms so that you get aware of what are the basic things which we need to cover. हमें कहाँ focus करना है? हमें understanding पे focus करना है, और हमें कैसे उसे current issues से relate करना है, उस पे focus करना है. So we'll be doing that. और बहुत systematic तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा बकवास बात नहीं, क्योंकि देखिए एक इशू पे हर टॉपिक जो है इंटरनेशनल लॉ में यू कैन डू अ PhD ऑन इट. एवरी टॉपिक कैन बी अ पोस्ट डॉक टॉपिक इवन. तो उस पे तो नहीं जाना है ना, उतने एनालिसिस की जरूरत नहीं है, और इतने भी कम में नहीं रहना है दैट आर अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट अ गाइड बुक अंडरस्टैंडिंग. नहीं, क्वालिटी टेक्स्ट बुक से मैंने जो किया था, मैंने मैल्कम शॉ, ब्राउनली, इन सब से अपने हिसाब से जो चीजें मुझे रेलिवेंट लगी उसको फिल्टर किया, एक नोट्स बनाया और उसको समझा. और मेरा जो इंटरनेशनल लॉ का मास्टर्स वाला जो बैकग्राउंड था, दैट हेल्प मी. सो आई विल बी यूजिंग दैट एक्सपीरियंस. नाउ दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि इसके लिए अंडरस्टैंडिंग तो सबसे पहले अनलर्न कर लीजिए जो आपने लर्न किया था. हो सकता है आपने सही लर्न किया हो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट स्टिल, एंड विथ अ क्लीन स्लेट वी कैन स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट which we were discussing was that international law. और सुनने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए, और जो क्वेश्चन हो वो आप सीधा पूछ लें. We can have separate doubt sessions as well. I will be repeating things. Does not mean that you should not concentrate. आप concentrate करें, शांति से सुने, बहुत बेसिक है, बहुत आराम से समझा जा सकता है. Even a person who comes from mathematics can understand it. Because what is law ultimately? और लॉ से ही तो आपको एज अ ब्यूरोक्रेट, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, आपको काम करना है. तो आप क्या कहेंगे, आई डोंट हैव अ लॉ बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई आई विल नॉट यूज लॉ, आई विल यूज मैथमेटिक्स टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम. इट डज नॉट मेक सेंस. यस, सो लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एंड इंटरनेशनल लॉ का मतलब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, राइट? सो इंटरनेशनल लॉ का मतलब हुआ सीधा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज देयर इन इंटरनेशनल लॉ so that we call it public international law, and how is it different from something called private international law? On this topic we will, पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं, देख लीजिए, वो समझ लीजिए, उसके बाद later on we can discuss in detail.
अभी समझिए कि देखिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ प्राइमरीली डील्स विथ स्टेट्स एंड इंटरैक्शंस, और जो कुछ भी होगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में वो थ्रू स्टेट्स होगा। आई रिपीट, देखिए यहां पर पब्लिक पे फोकस करिए और इंटरनेशनल लॉ पे फोकस करिए। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में एवरीथिंग, डोंट राइट, आई विल गिव नोट्स, आप बस समझिए। यहां पर आप अपना समय, फिर मैं 3-4 चीज जो इंपॉर्टेंट वैसी चीज होगी आई विल आस्क यू टू राइट, अभी ज्यादा लिखने पे फोकस नहीं करिए। अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस देन मेयर नोट्स मेकिंग। सी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में एवरीथिंग would either flow directly or indirectly from states. So primarily, I am using the term primarily, ये याद रखना है। Primarily ये state centric है। What is it? State centric. So everything will flow from state, directly or indirectly. This needs to be understood, to be appreciated. क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ स्टेट से ही शुरू होता है, और जो उसका एक्सपेंशन भी हुआ इन इट्स एम्बिट, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दैट हैज बीन डन थ्रू स्टेट्स, राइट? सो स्टेट्स के बीच में जो रिश्ता होगा उसी से ये प्राइमरीली डील करता है। दैट इज व्हाई इट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल लॉ। व्हाट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ? पहली बात ये समझिए, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट इंटरनेशनल लॉ। मतलब जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है दैट इंटरनेशनल लॉ इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, अनदर नो 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 नो। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ टेक्निकली इज नॉट इंटरनेशनल। देन व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? ये है कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। व्हाट इज इट? कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। अब आप बोलेंगे कि व्हाट इज दिस कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज? तो देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपका क्या नाम है? राम। वेरी नाइस। राम गोज टू यूनाइटेड स्टेट्स। राम इज एन इंडियन। ही गोज टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही मैरीज अ तंजानियन गर्ल, ठीक? एंड नाउ बोथ ऑफ देम गेट सेटल्ड इन फ्रांस, ठीक है? In France, after 5 years of their marriage, they find that we are not compatible. Let us file a divorce case. I mean, let us get a divorce. Now, किस law से वो divorce होगा? Ram is an Indian. The girl is a Tanzanian. The marriage took place in United States, and now they are settled in France. और फ्रांस में ये लोग divorce चाह रहे हैं। Now, which law will determine the result of the case? ये बड़ा टेक्निकल है। इसी को सेटल करने के लिए जो डिसिप्लिन है, इट इज नोन एज प्राइवेट इंटरनेशनल। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ प्राइमरीली फ्लोज फ्रॉम स्टेट्स, और इसीलिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ही इंटरनेशनल लॉ है। सब कुछ जो यहां होगा वो प्राइमरीली स्टेट सेंट्रिक है, इसीलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल फ्लो फ्रॉम स्टेट्स। Whereas in case of private international law, it is basically conflict of laws. Conflict of laws का क्या मतलब है? मतलब है, देखिए दो चीज होना चाहिए इसमें। अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई प्राइवेट सिविल मैटर है, जैसे मैरिज, जैसे डिवोर्स, जैसे टॉर्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, सक्सेशन, ये सब क्या है? प्राइवेट मैटर है। ये मैटर जिसमें फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हो, मतलब बाहर के का सिटीजन, उस केस में कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी? उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके लिए कुछ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है।
उसी से डील करता है दिस डिसिप्लिन विच इज नोन एज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज. राइट? तो हम समझ गए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हम नहीं पढ़ने जा रहे, लेकिन हो सकता है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए that discuss the distinction between difference between public international law and private international law. तो आप उसको बता सकते हैं that it is public international law basically primarily deals with states wherein everything flows directly or indirectly from states consent. directly or indirectly. अब मैं जो डायरेक्टली बोल रहा हूं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं. जैसे मान लीजिए कि आप कहेंगे कि कोई ट्रीटी होती है. देयर इज अ ट्रीटी व्हिच इज एंटर्ड इनटू बिटवीन टू स्टेट्स. नाउ this, what does it reflect? It reflects relationship between two states wherein both the states have expressed their consent. Now one state the treaty binds both the states. Both of them are supposed to do something. They have their own rights and they also have their own duties, right? Now there is a concept of international investment law. Now because I am describing the indirect term, what happens in international investment law? Even an investor can sue, can file a case against state. For example, if there is a treaty between India and United States, investment treaty, then an American investor can file a case against Indian government and Indian investor can file a case against US government. So we find that even individual investor is getting some right, but this right is flowing again from state's consent. I'm just giving an example to explain that state consent becomes of utmost importance when it comes to public international law, and everything flows directly or indirectly from state's consent, right? So states are the most important actors when it comes to public international law. And what is private international law? I've already explained that foreign entity, private matter. Then what are the principles which will determine the rights and duties, how the courts are going to resolve the issues of jurisdiction, the issues of a particular right pertaining to a private matter. That is decided by private international law, also known as conflict of laws. This is fine. I think अब हम लोग दूसरे चीज पे, क्योंकि देखिए these are the basic understanding thing, and if we are not aware of these things, we might get confused in our future discussion. तो अब मैं एक दो चीज और आपको बताऊंगा जो बहुत बेसिक है, लेकिन हमें वो समझना चाहिए पहले ही, क्योंकि these will form the base of your understanding of international law. ठीक है? तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें, ये पहले आपको मैं बता दे रहा हूं. एक डॉक्यूमेंट है यूएन चार्टर. UN Charter. There is a separate chapter on UN and its organs, unit, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन UN Charter understanding we will need for every other headings, because until unless we know what is UN Charter, until unless we know what are the basics which will determine our future course, then we won't be able to appreciate all that. तो UN Charter. दूसरा एक डॉक्यूमेंट है जिसे कहते हैं वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज. आई रिपीट, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज. अब ये क्या है? दिस शुड नॉट साउंड वेरी एलियन, मैं आपको बता दूंगा. बेसिकली ट्रीटी में एंटर कैसे होना है, ट्रीटी जब में आप एंटर होते हैं तो क्या क्या होता है, फॉर्मेलिटीज एंड व्हाट आर द सब्सटेंटिव राइट्स, इवन समटाइम्स वो सब ट्रीटी से बाहर कैसे निकलना है, कॉन्सेप्ट आप ट्रीटी में क्या नहीं कर सकते हैं, ट्रीटी में क्या कर सकते हैं, हाउ ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड, ये सब की बात वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज करता है. राइट? VCLT टॉक्स अबाउट द मोडालिटीज कि ट्रीटी में एंटर कैसे करना है. ट्रीटी में एंटर कर गए तो क्या होगा, ट्रीटी में एंटर करने का प्रोसीजर क्या क्या है,
ट्रीटी को इंटरप्रेट कैसे करना है, कुछ चीजों के बारे में जो बात है वो VCLT में। अब इसमें ना बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज है, क्योंकि ये सेकंड मैं आपको बस रेफर कर दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन अगर आप कोई दूसरा टर्म पाएंगे तो आपको लगेगा ये तो पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन मैं इसीलिए थोड़ा सा रेफर कर दे रहा हूँ। ये बेसिकली सेकेंडरी नॉर्म्स होता है। अब प्राइमरी नॉर्म उसके लिए समझना होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, तो ऐसे समझ लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। CRPC क्या है, एक तरह से सेकेंडरी है, लेकिन IPC क्या है, प्राइमरीली वो प्राइमरी है, राइट? क्योंकि कैसे लगना है वो बताएगा सेकेंडरी। बेसिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है वो बताएगा वो प्राइमरी, राइट? तो VCLT एक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास हमेशा रहना चाहिए। UN चार्टर दूसरा डॉक्यूमेंट है, इसका PDF इन सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड कॉपी इन हार्ड फॉर्म, वो आपको रिटन फॉर्म वो आपके पास होना चाहिए। नहीं, क्योंकि मैं रेफर करूंगा इन चीजों को जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा, कोई टॉपिक व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग, बिकॉज अंटिल अनलेस यू आर अवेयर ऑफ दैट you will not have a clear understanding. थर्ड है statute of international court of justice, statute of ICJ। कम से कम ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास पहले दिन से, जब से आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे, जैसे जब हम लोग लॉ ऑफ द सी पढ़ेंगे तो UN क्लॉज होना चाहिए, वो वी विल डिस्कस। और इसे डरना नहीं है, इसे नाम सुन के थोड़ा लगता है VCLT, बट दिस इज वेरी सिंपल। इससे बहुत ज्यादा टेक्निकल तो आपका डोमेस्टिक लॉ है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सिंपल, ठीक है? तो 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है? अब वील फोकस ऑन अनदर इशू। देखिए, जब हम लोग इंटरनेशनल लॉ, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक बात समझे दैट देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ इट। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांचेस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये सब इंटरनेशनल लॉ ही है, दीज आर ऑल इंटरनेशनल लॉ, लेकिन ये सेपरेटली थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीके से डील होता है, बिकॉज वी हैव अ सेपरेट डिसिप्लिन, लेकिन है सब क्या, इंटरनेशनल लॉ ही। और ये सब आपके लॉ ऑप्शनल के पेपर में भी सेपरेटली दिया हुआ है अंडर द ब्रॉड हेडिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसीलिए ये जान लीजिए। और इससे अब टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ट्रेड लॉ से आ रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ से आ रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से आ रहा है। ये क्या है, दीज आर ब्रांचेस। जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ही एक ब्रांच है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो ये किस चीज से डील करेगा, ये ट्रेड से डील करेगा। ट्रेड क्या होता है, सामान या सर्विस या IPR अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाए तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। दिस इज वेरी सिंपल। इसको डील करने के लिए कौन सी बॉडी है, WTO। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ बेसिकली डील्स विथ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसको डील करने के लिए बॉडी कौन सी है, WTO। ये किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से चलता है, तो GATS, TRIPS and other instruments like agreement on agriculture, sanitary and phytosanitary। मुझे देखिए ये नाम बड़ा खौफनाक लगता है सुन के, लेकिन इससे डरना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। गैट बेसिकली ट्रेड इन गुड्स से डील करेगा, गैट्स ट्रेड इन सर्विस से डील करेगा, ट्रिप्स जो है IPR के ट्रेड से। अब मान लीजिए कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ा एक स्पेशल एग्रीमेंट बना दिया गया है। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट। मान लीजिए आपने सुना होगा कि अल्फांसो मैंगोज पे EU ने प्रोहिबिशन लगा दिया था 2 साल पहले, तो किसी लॉ के तहत ही लगाया होगा, तो वो कौन सा लॉ था, क्या वो परमिसिबल है? ये सब इन सब चीजों से डील करता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। मैं आपको एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब हम नाम सुनते हैं ना सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स तो हम डर जाते हैं, है कुछ नहीं। अब कोई केस आपके पास हाइपोथेटिकल, UPSC might put forward a question that a country A
prescribes these quality measures when it comes to food products. Now it says that this should be the amount of potassium, this should be the amount of pesticide which should be used, all that. Now is it permissible? अब आपको लगे ये कहाँ से आया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहीं से नहीं आया, ये इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन है एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन है. आप सीधा लिखेंगे कि बैरियर कितने तरह का होता है, क्या बैरियर परमिसिबल है, अगर बैरियर परमिसिबल है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, वो कंडीशंस को डील करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, वो क्या कहता है, उसमें बहुत नहीं घुसना है. लेकिन एटलीस्ट अगर आप लिख देंगे कि ये फाइटोसैनिटरी एंड सैनिटरी मेजर्स वाले अग्रीमेंट से डील हो रहा है, वो बताता है कि रीजनेबलनेस होना चाहिए, क्या ये रीजनेबल लग रहा है, उसके हिसाब से आप आंसर कर देंगे, दैट्स इट. UPSC is not seeking your legal opinion, rather it's just trying to understand कि बंदे ने ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. उसे थोड़ी इंडिया का कोई केस आपसे लड़वाना है उस समय, उसे तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है. तो बहुत डेप्थ में नहीं घुसना है. लेकिन इनके बारे में अगर आप नाम भी नहीं सुने हो, जैसे इस बार एक आया था सिमिलर प्रोडक्ट, क्वेश्चन है, आप जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर. अब सिमिलर प्रोडक्ट पे केस लॉज हैं WTO में, आपने कभी नहीं सुना क्योंकि आपको लगा कि ये जो पेपर है ये तो एक फर्जी का पेपर है. और माइंड यू दिस वाज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, तो आप स्किप भी नहीं कर सकते उसे. एंड पीपल वेयर शॉक्ड दैट व्हाट इज UPSC आस्किंग. सो लॉ ऑप्शनल, स्पेशली इंटरनेशनल लॉ, इज बिकमिंग टफर डे बाय डे. अब वो क्वेश्चन पे सिर्फ नहीं चली है दैट इंटरनेशनल लॉ इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन. यस, उसकी भी तैयारी कर लीजिए, उसका भी नोट्स होना चाहिए आपके पास अगर वो आ गया तो. लेकिन वो आ गया तो आप भी लिख पाओगे जिस और कोई दूसरा भी लिख पाएगा. लेकिन व्हाट एडिशनल edge will you be having will depend upon your preparation when it comes to these issues. दूसरा, जैसे मैं आपको एक दूसरे डिसिप्लिन की बात करता हूं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ. अब आप सोचेंगे कि ये कहां है सिलेबस में दिया हुआ. भाई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पेपर चेक करिए, यू विल फाइंड अ क्वेश्चन. ये कहां से आया, केम फ्रॉम दिस. अब ये क्या है, how is it different, international trade law and international investment law? So we can just focus on the basics. That see, trade is when goods or service cross from, international trade is when goods or service or IPR cross from one country to other, directly or indirectly. Cross करने का मतलब ये नहीं होता हमेशा in physical mode, it can be in other mode as well. For example, suppose कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है through internet, then also it can be a part of international trade. Now what is international investment? इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में जो फर्क है वही इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में फर्क है. इन्वेस्टमेंट में बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट यू इन्वेस्ट व्हाट, इन्वेस्ट योर कैपिटल, इन्वेस्ट योर लेबर, इन्वेस्ट ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मैं देखिए, मैं टेक्निकल डेफिनेशन में भी नहीं घुस रहा हूं, मैं आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रहा हूं. मान लीजिए एप्पल कंपनी जो यूएस की कंपनी है, इट इन्वेस्ट समथिंग इन इंडिया, then what is it? It is international investment because it is investing its resources in various forms. ये कैसे डील होता है? जैसे इसमें तो WTO है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं है. As such, like WTO, there is no specific body. Then how is it dealt? It is dealt by instruments called bilateral investment treaties. इसे ही हम BITS बोलते हैं. टर्म को देख के कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, डोंट गेट इंटिमिडेटेड. नाउ व्हाट डज बिट्स प्रोवाइड फॉर? बिट्स बेसिकली आर, सिंस its full form is bilateral investment treaties, so what is bilateral here? That is between two states. For example, India and United States signs into a bilateral investment treaty. Now what will it provide? That how an investment would be protected. What will be the rights of the investor? What will be the rights of the states? What states can do when it comes to a foreign investment, and what sort of remedies do the foreign investors have when state is taking an action? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एप्पल मान लो इंडिया में कुछ इन्वेस्ट करता है और इंडियन गवर्नमेंट हाइपोथेटिकली कहती है कि ठीक है, अब आपने तो जितने पैसे इन्वेस्ट किए वो सब अब हम नेशनलाइज कर देंगे, हम सब एक्सप्रोप्रिएट कर लेंगे, सब हमारा हो गया. क्या वो कर सकता है?
सरकार क्या ऐसा कर सकती है? ये डिपेंड करेगा कि क्या कोई ट्रीटी है जो इसे प्रोहिबिट कर रहा, या क्या व्हाट इज द लॉ विच विल अल्टीमेटली डिसाइड हाउ फार द इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड, दैट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड इन इंडिया। मैं आपको बस एग्जांपल से समझा रहा हूं। सेम गोज विथ इंडियन इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। क्या आर्बिट्रेरीली यूएस गवर्नमेंट इंडियन इन्वेस्टर के साथ कुछ कर सकती है? वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई एंटर हुआ है बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इस केस में। तो ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अलावा ये कोई मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी हो सकता है, हो सकता है। स्टेट मान लो 100 स्टेट मिलके चाहे दैट वी ऑल विल बी प्रोटेक्टिंग ईच अदर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो कर सकती है स्टेट्स। वो फिर एमआईटीज हो जाएगा या कुछ भी नाम दे दीजिए। तो कंटेंट मैटर कर रहा है, नाम पे मत जाइए। अगर इस इशू पे कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या कोई बॉडी है जो रिजॉल्व करती है? तो देखिए आर्बिट्रेशन में मैटर जाता है, उसके लिए एक बॉडी जिसका नाम है इक्सिड, बाकी और भी बॉडीज हैं, लेकिन जो एक प्रोमिनेंट बॉडी जिसका नाम आप सुनेंगे दैट इज इक्सिड, वो एडजुडिकेट करती है इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ, दैट इज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स विज़ावी स्टेट्स। ठीक है, बस एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं इन चीजों को। फिर जैसे एक और डिसिप्लिन है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसे IHL कहते हैं। देखिए दो टर्म यूज होता है, वन इज IHL, अनदर इज IHRL। HRL इज ह्यूमन राइट्स लॉ, दिस इज ह्यूमैनिटेरियन लॉ। नाउ व्हाट इज दिस? तो बेसिकली ये आप ऐसे समझ लीजिए, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज लॉ ऑफ वॉर। उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या है। लॉ ऑफ वॉर, व्हाट डज इट मीन, ये डिटेल में अभी समझ लीजिए कि लड़ाई में भी आप सब कुछ नहीं कर सकते। नाउ व्हाट यू कैन डू इन अ वॉर, दैट इज डेल्ट बाय अ डिसिप्लिन कॉल्ड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसी में आप सुने होंगे, जस्ट गेट फैमिलियराइज्ड विद दिस टर्म। जिनेवा कन्वेंशन 1, जिनेवा कन्वेंशन 2, जिनेवा कन्वेंशन 3, जिनेवा कन्वेंशन 4, एडिशनल प्रोटोकॉल 1, एडिशनल प्रोटोकॉल 2। ये बहुत इंटिमिडेटिंग लग सकता है स्पेशली टू नॉन लॉ पीपल, लेकिन डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, लॉ ऑफ वॉर। लड़ाई में क्या कर सकते हैं? क्या किसी भी तरह से कोई काम कर सकते हैं लड़ाई में? कैन यू, इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन व्हेन इट कम्स टू वॉर? यस देयर आर। डू कंट्रीज फॉलो इट? इन सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग IHL पढ़ेंगे, इसी सब एज अ सब हेडिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ेंगे। वैसे ही इससे ही एक रिलेटेड डिसिप्लिन है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। अब व्हाट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, ये समझना होगा हमें। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ इज बेसिकली डीलिंग विथ इंटरनेशनल क्राइम्स। नाउ व्हाट आर इंटरनेशनल क्राइम्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म टू डील विथ इट, इन क्वेश्चन से डील करता है ये डिसिप्लिन। इसमें एक बॉडी है जो बहुत फेमस है जिसका नाम है ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और भी कुछ बॉडीज रही हैं, मैं इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि दिस बॉडी इज अ परमानेंट बॉडी, whereas when I am talking about other bodies like ICTY का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ऑफ यूगोस्लाविया, फॉर यूगोस्लाविया। फिर ICTR फॉर रवांडा, रवांडा में जो हुआ था 90s में, यूगोस्लाविया में जो हुआ था, उन सब के लिए कुछ टेम्परेरी बॉडीज थी, तो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरनेशनल क्राइम, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरनेशनल क्राइम, वेयर डज द मैटर गेट्स एडजुडिकेटेड, दैट्स ICC। क्या ICC में सारे लोगों का मैटर जा सकता है?
किनका जा सकता है, ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करेगा आईसीसी की जुरिस्डिक्शन पे, वो डिपेंड करेगा किस कंट्री ने कंसेंट दिया है, क्या विदाउट कंसेंट कोई कंट्री जा सकती है, परमानेंट मेंबर्स का क्या होगा। अब आईसीसी पे क्वेश्चन आ चुका है, जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, नॉट ओनली लॉ, आपको जीएस में आ सकता है, आईआर में आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आईसीसी रेगुलरली न्यूज में रहता है और यूपीएससी हैज अ टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन न्यूज। तो हम लोग जो सीएलडी देखते हैं ना, कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बेसिकली वो सीएलडी सिर्फ वहां नहीं पूछा जाता, कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट आपके हर टॉपिक्स को रिलेट करके कहीं से भी पूछा जा सकता है। जस्ट आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप क्वेश्चंस देखो, आपको लगेगा ये साल 2 साल 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं न्यूज में था। 80% ऑफ क्वेश्चंस, कुछ जो 20% स्टैटिक है उन पे तो खैर बात नहीं की जा सकती इस इशू पे। तो मैं आपको बस एक एग्जांपल से समझा रहा हूं दैट इंटरनेशनल लॉ, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, not private international law. This is international law means public international law. Why? Because it is primarily dealing with states, and if it is primarily dealing with states, that means everything is flowing directly or indirectly from states. इनके ये ब्रांचेस हैं, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ, इंटरनेशल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशल क्रिमिनल लॉ, ऐसे ही इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ, लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लॉ ऑफ द सी, जैसे लॉ ऑफ सी, ये भी इंटरनेशनल लॉ का ही एक ब्रांच है, हम लोग सेपरेटली डील करेंगे। इसी में आप बॉडी का नाम सुनते होंगे, एक ट्रीटी का नाम सुनते होंगे, यूएन क्लॉज। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत बहुत एक्सपेक्टेड है दिस ईयर, I'll tell you how and why. इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक झड़प हुई थी। झड़प, when I'm using this term, I'm using this term in a legal sense, that was related to Indian Ocean. क्योंकि यूएस की शिप आ गई थी, इंडिया ने कहा कि आप हमारे ईईजेड में नहीं घुस सकते। यूएस का कहना था नो 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 नो, वी आर परमिटेड बाय यूएन क्लॉज। इंडिया ने कहा नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने पहले ही अपना एक डिक्लेरेशन दे दिया है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग यूएन क्लॉज की, उसके हिसाब से आप नहीं घुस सकते। तो अब क्या है कि एक फैक्चुअल सिचुएशन ऐसा आ सकता है, फिर आप यूएन क्लॉज को बहुत लाइटली नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन आएगा तो इसके सराउंडिंग में ही कुछ आना है। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग, आई एम नॉट गिविंग एनी गारंटी। अब क्या, क्योंकि ये मार्च का न्यूज है, जस्ट आप अखबार को देखिए, मार्च अप्रैल का ये न्यूज है। मार्च अप्रैल का न्यूज आपके मेंस में आ सकता है यूएन क्लॉज में, कि ईईजेड में क्या रेस्ट्रिक्शन है, कैन ए कंट्रीज वॉरशिप सेल थ्रू ईईजेड, इज इट, एंड व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस। अब उसके लिए आपको यूएन क्लॉज भी पढ़ना होगा, और इंडिया का जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस इन दिस रिगार्ड, दैट आल्सो शुड बी डेल्ट विथ। तो लॉ ऑफ द सी हो गया, फिर मैंने बताया इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ हो गया, उसमें आपको कुछ प्रोटोकॉल्स, जैसे इस बार भी आप क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस थे। अब सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पांसिबिलिटी, वी आल्सो हैव पोल्यूटर पेज, प्रिकॉशनरी, उसको फिर आप कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से रिलेट करते हैं। तो मतलब जब आप एक बार इस पेपर को पढ़ लेंगे, फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अभी क्या है, अभी आपको इट माइट अपीयर, इट माइट साउंड अ बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि बहुत डिटेल में अभी हमने पढ़ा नहीं है, मैं तो आपको बस ऊपर ऊपर से कुछ बातें बता रहा हूं। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके।